A warm welcome on online class of Prague Public School. Today I am here with English Literature of class 3 and today I am going to revise half chapter of lesson 10. What is the chapter name? Noah's Ark. And what is the story? It is the story of it is the story of God and his disciple Noah. Okay, Noah was devotee of God. Noah was the devotee of God. Okay, he obeyed to God. Okay, man was the God was very sad. He regret to made to man because at that time man was making all sorts of bad deeds. Okay, robbing, okay, killing, all sorts of bad deeds the people were doing. That's why the God was very sad and very angry and God wanted to destroy the whole world. Okay, but he wanted to save to Noah, but all the people except Noah and his family, God wanted to destroy them, the whole world. God wanted to destroy the whole world except Noah and his family. Okay, so it is a story, and half chapter I have revised you, and today I am going to revise half chapter. Okay, then where was we reading? We reading that page number 82. What was the last paragraph? Last paragraph that the ark was ready. Okay, Noah's ark was ready and he obeyed the instructions of God and he took 2 of every kind of animal, bird and creeping things, male and female, with him into ark. नोह की जो आँख थी वो तो रेडी हो गई थी और उसने उसमें क्या किया था, जैसा कि गॉड ने इंस्ट्रक्शन दिया था, 2 तरह के मेल और फीमेल, तो बर्ड्स जो क्रीपिंग जो मतलब रेंगने वाले जो एनिमल्स हैं, और जितने भी बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, सबका एक मेल और फीमेल उस आर्क में, उस नाव में नोह ने रख लिया था अपने साथ. ठीक है, नाउ page number 83. Okay, let's read now. His sons and their wives also helped him to take food for all the living creatures and his family to last for the time they were to spend in the ark. His sons and their wives, his sons मतलब उनके बेटे और उनकी जो पत्नियां थी, also helped. तो creatures and his family to last for the time they were to spend in the ark. अब वो लास्ट टाइम था उन लोगों का जब वो लोग वहाँ पे स्पेंड कर रहे थे, मतलब जहाँ पे वो लोग रहते थे. ठीक है ना. लास्ट ऑफ ऑल Noah's family entered the ark and when they were all safe in the ark, God closed the door of the ark and the people outside the ark laughed at Noah, but Noah trusted God and waited 7 days. Then it began to rain like it had never rained before. It rained for 40 days and 40 nights, and the water went higher and higher and covered the highest mountain in the world. All the people and every living creature was destroyed. There was no man left except Noah and his family and the animals, birds and creeping things that were in the ark. Last of all आखिर में नोह की फैमिली ने आर्क में एंटर किया और when they all safe in the ark, और जब वो आर्क में यानी नाव में सब लोग
सेफ थे बोट में, तब क्या हुआ, गॉड ने आर्क का डोर क्लोज कर दिया। द पीपल आउटसाइड इन द आर्क लाफ्ड एट नोह बट नोह ट्रस्टेड गॉड। जो आर्क के नाव के बाहर जो लोग थे वो लोग नोह पे बहुत हंस रहे थे, लेकिन नोह को भगवान पे क्या था, विश्वास था। एंड वेटेड 7 days, और उसने क्या किया, वे लोग सोचते एकदम ड्राई है और ये लोग यहाँ पे नाव में बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो लोग सब उसकी हंसी उड़ा रहे थे, ठीक है। लेकिन उसको नोह को भगवान के ऊपर विश्वास था और उसने 7 days क्या किया, वेट किया। देन इट बिगैन टू रेन लाइक इट हैड नेवर रेन्ड बिफोर, और उसके बाद ऐसे बारिश शुरू हुई जैसे कि इसके पहले कभी भी बारिश नहीं हुई थी। It rained for 40 days and 40 nights, and the water went higher and higher and covered the highest mountains in the world. और 40 रात और दिन रात लगातार बारिश हुई और पानी ऊपर से ही ऊपर उठता चला जा रहा था, और उसने क्या किया था, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को भी पूरे पानी से वो सब क्या हो गए थे, ढक गए थे। सोचिए, ऑल द पीपल एंड एवरी लिविंग क्रीचर वॉज डिस्ट्रॉयड। सारे जो लोग थे और जितने भी जो जीव पक्षी जीव थे सब क्या हो गए थे, नष्ट हो गए थे। देयर वर नो मैन लेफ्ट एक्सेप्ट नो एंड हिज फैमिली। कोई भी लोग नहीं, उस नो और उसकी फैमिली के अलावा कोई भी नहीं बचा था। द एनिमल बर्ड्स एंड क्रीपिंग थिंग्स दैट वर इन द आर्क। जो भी के आर्क में थे, जो बोट में नाव में थे, उनके अलावा कोई भी नहीं बचा था। व्हेन द रेन फाइनली स्टॉप्ड, बेटा टर्न द पेज 84, ओके, पेज नंबर 84। When the rain finally stopped, Noah looked out and saw that the ark was still floating on the flood water. It floated for 150 days. On the 17th day of the 10th month of the ark rested on Mount Ararat. When the rain finally stopped, जब आखिर में बारिश रुक गई, Noah looked out and saw that the ark was still floating. नोह ने बाहर देखा और देखा कि नाव अभी भी बाढ़ के पानी में क्या हो रही है, तैर रही है। इट फ्लोटेड फॉर 150 days। ये 150 days तक क्या हुई, तैरती रही। ऑन द 17th day ऑफ द 10th month, 10th month के 17th day को क्या हुआ, 17वें दिन, आर्क रेस्टेड ऑन माउंट अरारत। जो माउंट अरारत है वहाँ पर वो 17th डे को क्या हुई, तब 17 मतलब 10th मंथ के 10वें महीने के 17 डे को, सोचिए, रुकिए, कितने दिन तक सोचिए, वो क्या हुई, जो वाटर में मतलब फ्लड वाटर में आर्क जो है फ्लोट कर रही थी, मतलब तैर रही थी। गॉड डिड नॉट फॉरगेट नोह। गॉड नोह को नहीं भूले थे। ही सेंट अ विंड अक्रॉस द वाटर्स एंड द फ्लड बिगेन टू गो डाउन। ही सेंट अ विंड, उन्होंने, विंड क्या होती है, तेज़ हवा को, एयर होता है ना, तो तेज़ हवा को विंड बोलते हैं ना, एयर को हवा बोलते हैं, लेकिन जो तेज़ हवा होती है बहुत तेज़, जिससे चीज़ें उड़ने लगती हैं, उसको बोलते हैं विंड, ठीक है ना बेटा। तो बहुत तेज़ हवा भगवान ने भेजा, एंड फ्लड बिगेन टू गो डाउन, और जो बाढ़ का पानी था वो नीचे जाने लगा। नोह सेंट आउट अ डव टू सी इफ़ इट वॉज सेफ टू स्टेप आउट ऑफ द आर्क। तो नोह ने क्या, वो डव क्या होता है बेटा, डव जो होता है वाइट बर्ड होता है, इसको डव बोलते हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, डव को बाहर भेजा देखने के लिए कि बाहर निकलना सुरक्षित है या नहीं है, क्योंकि भाई वो तो उड़ सकता है, ठीक है ना। बट द डव कुड नॉट फाइंड अ प्लेस टू रेस्ट एंड रिटर्न टू द आर्क। लेकिन डव को कहीं भी ठहरने के लिए जगह नहीं मिली, इसलिए वो वापस आर्क में आ गया। 7 days later he sent the dove out again. That evening she returned with an olive leaf in its mouth, and Noah knew that the flood had finally ended. 7 days later, 7 दिनों के बाद, he sent the dove out again. उसने डव को दोबारा भेजा। That evening she returned with an olive leaf. और इसके उस दिन वो शाम को एक ऑलिव, मतलब ऑलिव जो होते हैं जैतून जिसको बोलते हैं, उसके पत्ते के साथ वापस अपने मुंह में ऑलिव लीफ का एक लेके अपने मुंह में वो वापस आया। नोह न्यू दैट द फ्लड हैड फाइनली एंडेड। उसको पता चल गया कि जो फ्लड मतलब बाढ़ है अंततः क्या हो गई, रुक गई है, ख़त्म हो गई है।
नोह वेटेड अनदर 7 days, उसने फिर 7 days वेट किया, एंड सेंड द डव आउट वंस अगेन एंड दिस टाइम इट डिड नॉट रिटर्न, उसने फिर 7 days बाद जब डव को बाहर भेजा तो बाहर गया, लेकिन वो फिर दोबारा वापस नहीं आया, उसको रहने के लिए जगह मिल गई होगी, ठीक है ना। नाउ नोह न्यू दैट द वाटर हैड ड्राइड अप, सो ही लेट आउट हिज फैमिली, द एनिमल्स, द बर्ड्स एंड द क्रीपिंग थिंग्स फ्रॉम द आर्क, व्हेन दे वेंट आउट दे वर्शिप्ड गॉड। अब उसको पता चल गया कि बाहर कैसा हो गया है, सूखा हो गया है, और इसलिए उसने अपनी फैमिली को और जितने एनिमल्स थे, बर्ड्स थे, क्रीपिंग थिंग्स थी, सबको क्या किया, बाहर निकाला। और जब वो सब जब बाहर निकले तो वो गॉड को वर्शिप कर रहे थे, भगवान की पूजा कर रहे थे। देन गॉड मेड अ प्रॉमिस टू नोह, तब गॉड ने नोह से प्रॉमिस किया, ही सेड नेवर अगेन शैल आई सेंड सच अ फ्लड टू डिस्ट्रॉय द अर्थ, अब दोबारा मैं कभी भी ऐसी बाढ़ नहीं भेजूँगा पृथ्वी में ऐसी बाढ़ कभी भी पृथ्वी को नष्ट करने के लिए नहीं भेजूँगा। एंड गॉड सेंट अ ब्यूटीफुल रेनबो, रेनबो क्या होता है, जिसको इंद्रधनुष बोलते हैं ना, जब बहुत बारिश होती है, बारिश के बाद आप देखोगे स्काई में एक रेनबो आप देखते होगे ना, 7 कलर्स का रेनबो दिखता है ना, उसको क्या बोलते हैं, रेनबो ना। गॉड सेंट अ ब्यूटीफुल रेनबो एज अ साइन ऑफ हिज प्रॉमिस, गॉड ने अपने प्रॉमिस के तौर पर उस साइन भेजा है, किसका साइन भेजा, रेनबो का साइन भेजा, ठीक है बेटा। तो व्हाट इज़ द मोरल ऑफ स्टोरी, देखिए वो ट्रस्ट करते थे गॉड पे नोह, और वो कभी कोई गलत काम इसीलिए नहीं करते थे, अगर हम गलत काम करेंगे तो उसका रिजल्ट भी बेटा क्या होगा, गलत होगा, ठीक है ना, इसलिए हमें कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। ओके, नाउ लिसन, व्हाट इज़ द क्लास वर्क बेटा। लास्ट में मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोग को क्लास वर्क दिया था, जिसमें आपको हिंदी में वर्ड्स की मीनिंग लिख के देना था, इन वर्ड्स की। तो वो वर्ड्स आपने ज़्यादातर बच्चों ने क्या किया था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन्हीं वर्ड्स को आप लोग ने लिख के फिर राइट कर दिया था। और मैंने जबकि आपको वीडियो में क्लियर किया था कि इनकी हिंदी मीनिंग आपको डिक्शनरी से या आप गूगल से फाइंड आउट करिए, और आप इनकी हिंदी मीनिंग आपको लिख के मुझे सेंड करना है। आप चैप्टर का नेम डालेंगे, जो डेली कॉपी आप यूज़ करते हैं उसी में आप ऐसे ही जो डेली कॉपी में आप वर्क करते हो उसी में आप लिख के एक साइड में आप ये वर्ड सारे उतार लोगे, 10 वर्ड्स, और उनकी हिंदी आप सर्च करके हिंदी में मीनिंग लिख के मुझे भेजेंगे। ओके, और आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क जो इस चैप्टर का जो फिल इन द ब्लैंक्स है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर मैं करा चुकी हूँ, आप लर्निंग भी कर चुके हो, सेंड भी कर चुके हो। अब आप होमवर्क में आप फिल इन द ब्लैंक्स इस चैप्टर के लर्न करके फिर राइट करके मुझे होमवर्क में सेंड करोगे। ओके, हैव अ गुड डे।